Okay, so Prachi, thank you for this. The lines you have written. Good morning, sir. Very good morning. Now, please keep your mics off. सर अटेंडेंस लिंक भेज दीजिए. Attendance link it is given to you. Exercise 10A. Question number 1. It is very simple. Find the gain or loss percent. So suppose that CP is given to you rupees 620 and SP is given to you rupees 730. Since since SP is greater than CP, therefore we are having a profit. अभी क्या होना चाहिए? Profit, है ना? So when we are having SP is greater than CP, then definitely we are having a profit. So profit is equals to SP minus CP. So that is equals to 730 minus 620. So now 730 and this will be 80 plus 13, that is 93. Okay, so 93 is your profit. Now we have to calculate profit percent. So what is the formula for profit percent? Profit percent is equals to profit upon CP into 100. Then we have to put the sign of profit percent. So that is equals to 93 upon how much there is a CP, that is 620 into 100. Okay. So now cancel out. So cancel out the तो वेट के लिए कितना जाएगा? Okay, so that is your 15%. So this is the way how we are going to solve this question. First one, rest part you have to do by yourself. Now similarly, we are having question number . Okay, now see next part, question number 2. ये इसी क्वेश्चन से इनको आप अपने से घर पे लगाइएगा. कैसे सॉल्व करना है ये स्टेप हमने आपको बताया कि व्हाट यू हैव टू रिटन नाउ, क्या क्या चीजें लिखनी है वो आपको देखना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर क्वेश्चन नंबर 2. Find the selling price when CP is given to you rupees 1650 and gain percent that is 4%. Okay, clear? So now what we have to find out? हमें क्या निकालना है? That is
SP. We have to find out SP. So now we know the formula for SP. SP is equals to 100 plus gain percent upon 100 into cost price. ये तो formula है. So directly we are having a formula. Otherwise अगर आपको formula याद नहीं है, then how we are going to solve? So suppose that आपको formula नहीं याद आ रहा है, then what we have to do now? SP is equals to क्या आपको बताया था? SP is equals to होता है CP plus profit. ये बेसिक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ये होता है. Clear? So CP is given to you 1650 and profit is how much? That is 4% of cost price. That is 4% of 1650. Okay. So now take 1650 common. So what is left? 1 plus 4%, yani 4 upon 100. 1650 into 104 upon 100. Same you are getting here also. So here also you are going to get this one only. ठीक है, आप देख सकते हैं आपने फॉर्मूला भी लगाया और आपने बेसिक लगाया, दोनों में ही यू आर गेटिंग द सेम थिंग. Okay. So 1010 cancel out. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 3s are 15, 2 5s are 10, 2 2s are 4. So now multiply 52 into 33. So how much it is? कितना निकाला आप लोगों ने? 1716. It is correct now? चलिए हम 1716 अगर आप निकालेंगे Is that clear? यानी आपको करना क्या है कि either you can use this one, directly use the formula. Suppose that if you are unable to remember the formula, आपको याद ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि सर फॉर्मूला क्या था, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करना है आपको? बेसिक फॉर्मूले पे जाना है. बेसिक फॉर्मूला क्या है? दैट इज सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. दैट इज अगर आपको प्रॉफिट हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ मोर देन दैट कॉस्ट प्राइस ना. तो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा लेना है, वो हमारा प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? 4% इट इज गिवन टू यू. तो 4% ऑफ व्हाट? 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस. सो दैट इज 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस. 1650 को कॉमन कर दिया. व्हाट इज लेफ्ट? नथिंग विल बी लेफ्ट हियर. सो वी हैव टू राइट हियर 1 प्लस 4% है. 4% को क्या कर सकते हैं? 4 upon 100 है ना. एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, नीचे आपका 100 जाएगा. 100 प्लस 104 upon 100. Is that clear? What is this, Prachi? 134. Not understand second line. This one. Trace. This one. बेटा यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू रखी. कॉस्ट प्राइस की वैल्यू देखी. कॉस्ट प्राइस की वैल्यू और प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट हमेशा क्या है? इट इज गिवन इन अ परसेंटेज. 4% ऑफ व्हाट? इसका 4% ऑफ सीपी. ठीक है ना. हमेशा प्रॉफिट, मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस ओनली. सो 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी इतना पैसा को आपको लेना ही है और आपको प्रॉफिट कितना लेना है? इसी का 4% आप एक्स्ट्रा लोगे. सो दैट विल बी योर प्रॉफिट. ठीक है ना. दुकान वाले भी यही करते हैं. जब वो सामान को खरीद के लाते हैं, वो 100 रुपए में सामान को खरीद के लाते हैं, एंड फाइनली डिसाइड कि हाउ मच प्रॉफिट वी वांट, हमें कितना प्रॉफिट चाहिए. तो अगर हमें प्रॉफिट चाहिए, कि अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि दैट इज ऑन दिस, आई हैव टू टेक दैट 10 रुपीस, हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि दैट आई वांट 10%. तो मेरा डिसाइडेड है कि मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए सारे गुड्स में. मैं क्या करूंगा? सारे गुड्स का पहले क्या करूंगा? देखिएगा मार्केट में शॉपकीपर कितने इंटेलिजेंट होते हैं. वो आप
तो देखिए वो उन्होंने 100 रुपीस में खरीदा है, आपके आइटम के ऊपर क्या लिखा हुआ है इससे उनको कोई लेना देना नहीं, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना किससे कि उन्होंने कितने में खरीदा, उन्होंने 100 रुपीस में खरीदा। हो सकता है कि आपके मार्केट के ऊपर 120 रुपीस लिखा हो, ये भी हो सकता है, और उनको कितने में मिला है, 100 रुपीस में मिला है। नाउ दे हैव डिसाइडेड कि हमें जो है 10% प्रॉफिट चाहिए। इन्होंने पूरा डिसाइड किया हुआ है कि अगर हम अपने शॉप में जो है 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन आई वांट द 10% एवरी डे। 10% एवरी डे मतलब 10,000 रुपीस उनको चाहिए चाहिए, तो वो 10,000 रुपीस चाहिए, 10% ये डिसाइडेड है उनका, तो 10% ऑफ दिस यानी 10 रुपीस, 10% ऑफ इसका पहले से डिसाइडेड है, यानी वो 10 रुपीस पहले से ही प्लान करके चल चुके हैं। यानी इस मार्कर को वो 110 से 1 रुपए नीचे कभी बेच ही नहीं सकते, चाहे उनके पापा आके क्यों ना खरीद लें। उनके पापा भी खरीदेंगे, उनके बेटे भी खरीदेंगे, तो वो यही बोलेंगे कि नहीं 110 में मिलता है, कभी नहीं बताएंगे कि हमने 100 रुपीस में खरीदा है। हाँ, अब उसके ऊपर 120 लिखा हुआ है तो बाकी सबको 120 पे देंगे, क्योंकि 120 लिखा हुआ है। अब कोई मिल गया, जैसे हमारे जैसा लोग मिल गए, अरे सर आपके लिए क्या है, आपके लिए तो जगह डिस्काउंट है, मैं डिस्काउंट कर दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन कितना डिस्काउंट करेंगे, इससे 1 रुपए भी नीचे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये उनका फिक्स प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को कभी कम नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, ऐसा होता है लॉजिक, मार्केटिंग इसे कहते हैं। सो अंडरस्टैंड हुआ क्रिस तिवारी, यानी कॉस्ट प्राइस है उस गुड का और 4% हमने प्रॉफिट डिसाइड किया हुआ है, तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। इट शुड बी 1716, यानी वो इससे बेचेगा, वो इससे 1 रुपए नीचे भी कभी नहीं बेचेगा। हाँ, इससे ज्यादा पे बेच सकता है, इससे ज्यादा पे दे देगा, ठीक है ना। अब वो 1716 से कम कब करेगा। अब मान लीजिए इसमें क्या किया, क्रिस तिवारी है, क्रिस तिवारी तो उर्दू है, वैसे उनको कुछ समझ में तो आता नहीं है, तो बता देंगे जो है, अरे यार ये 2000 रुपए का मिलता है, क्रिस तिवारी 2000, अंकल प्लीज थोड़ा सा छोड़िए, चलिए ठीक है, आप बेटा आप आए हो, आपके लिए 1800 लगा। अब क्रिस तिवारी 1800 पे करके चले आए, लेकिन फिर भी स्टिल उन्होंने अपना जो टारगेट बनाया था तब भी उनको एक्स्ट्रा मिला हुआ है। अभी जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है 84 रुपीस, ये हो सकता है 84 रुपीस अगर मैं जाऊंगा तो सर क्या है सर, इतना 1716 मेरे लिए भी चलिए सर, आप ठीक है 84 रुपीस कम दे दीजिए इधर एडजस्ट, क्योंकि उनका 10% टारगेट अचीवेबल, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, तो कोई भी शॉपकीपर फ्री में कभी आपको जो है ना डिस्काउंट नहीं देता, वो अपने टारगेट, क्योंकि वो अपना टारगेट नहीं अर्न करेगा तो अपने घर से थोड़ी ना लाके आपको खिलाएगा। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू कि क्या लॉजिक होता है मार्केटिंग का, ठीक है। तो ये हमेशा जो है प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। लॉस और गेन हमेशा जो है वो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होते हैं, उसका सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। अंडरस्टैंड? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। जब तक आप इसको जो है मार्केट को खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना। आप खुद सोचिए कि अगर आप होते उस जगह पे तो आप क्या कर रहे हो। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। बेस्ट पार्ट यू कैन डू ऑन सेम वे, तो आप कैसे कर लीजिएगा, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज गिवन टू यू रुपीस 1596 and gain percent is given to you 12%। चलिए ठीक है, ये भी अच्छा है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। Now we have to find out CP. हमें CP लिया। Clear? So how we are going to find out the CP? अब फॉर्मूला तो हमारे पास जैसे ही फॉर्मूला है, CP is equals to 100 into selling price upon 100 plus gain percent. Okay. We are having this formula.
So we can easily put these values in 100. SP will be your 1596 upon 100 plus 12%. It will be 100 into 1596 upon 100. देखिए सर मैं फॉर्मूला भूल गया सर, मैं क्या करूंगा वहां पे एग्जाम में जाकर, होता है अक्सर हो जाते हैं। ठीक है ना, अक्सर हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या फिर से अगर रेल हो रहा है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, SP इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट, ये होता है। हमें CP निकालना है तो CP इक्वल्स टू SP माइनस, फॉर्मूला एक ही याद करना बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। क्लियर? अब सारी वैल्यू लिख लीजिए। SP is given to you 1596, CP हमें पता नहीं है, हमने ले लिया x, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, दैट इज 12% ऑफ x, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं, वी डोंट नो द CP, ठीक है। CP हमें नहीं पता है, सो हम इसी जगह x ही रखेंगे, क्योंकि हमें तो पता है प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के निकलता है। लाइक इस फिगर आइए x प्लस 12/100x 1596, LCM लिया 100x plus 12x is equals to 1596 into 100. 112x is equals to 1596 into 100. X is equals to 1596 100 upon 112. आ गया सही? आ गया सही? यानी देखिए यही फॉर्मूला कहीं नया बन के नहीं आया था, सिंपल। जिसको लीनियर इक्वेशन का अच्छा कमांड है, जो लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से समझता है और प्रॉफिट लॉस को बहुत अच्छे से इस लाइन को समझता है, इस लाइन को, केवल ये एक लाइन है कि सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, या तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, इसके अलावा बाकी सब फॉर्मूले तो इन्हीं फॉर्मूले से बनाए गए, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। ये दो लाइन का फॉर्मूला होता है बस, ये हमेशा याद रखना। SP equals to CP plus profit और SP equals to अगर लॉस हुआ है तो CP minus लॉस। बस जिसको ये दो फॉर्मूले आते हैं वो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कोई भी फॉर्मूला बना देगा, कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर देगा, उसके लिए बहुत आसान है। अगर उसको लीनियर इक्वेशन में अच्छा कमांड है, अपने आप को लीनियर इक्वेशन का मास्टरमाइंड समझता है, सारी वैल्यू की बात देखिए क्या हुआ, सेम टू सेम, कुछ नया काम नहीं किया होगा। पूछते हैं ना आप लोग मुझसे कि सर हम लीनियर इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ अप्लाई करें, यहाँ अप्लाई करें। मार्केट में जाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप में से बहुत सारे जो है वो बिजनेसमैन बन जाओगे, ठीक है ना, सारी चीजें करोगे तो यू शुड नो द कैलकुलेशन ऑफ दिस। लेकिन इसकी कैलकुलेशन के लिए यू नीड दिस वन, यानी आपको लीनियर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। पीयूष कुमार सर प्लीज द फिफ्थ लाइन, फिफ्थ लाइन बोलने से दिस वन बेटा, प्लीज यू वांट दिस वन। हाँ बेटा यहाँ पे हमने कुछ नहीं, हमने लीनियर इक्वेशन आपको समझाया था कि जब भी हमें फ्रैक्शन को खत्म करना है तो जो भी चीज डिनोमिनेटर में उससे सभी को मल्टीप्लाई करो। हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया 100x हो गया, यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई किया तो दोनों कट गए, यहाँ भी 100 मल्टीप्लाई हो गया, लीनियर इक्वेशन लीनियर हो गया। इज दैट क्लियर? यस अविनाश कुमार मिश्रा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, तो सॉल्व करने पे वैल्यू कितने आएगी आपने निकाला ही था, कितना है आंसर बेटा? सॉल्व किया इसको, आंसर कितना है?
One 4 to 5. Okay. Now next, move on the next one. चलिए next question में चलते हैं. So our next question is Manjeet bought an iron safe for 12160 and paid rupees 340 for its transportation. Then he sold it for rupees 12875. Find his gain and loss per share. अब देखिए यहाँ CP of iron safe. Manjeet ने iron safe purchase किया. So of how much? That will be a rupees 12160 plus he paid rupees 340 as transportation. मैंने कल आपको बताया था कि जब transportation देते हैं that is said to be our overhead expense. So overhead expense is always added to this cost price. So the cost price will be how much? That is 60 plus 40, that is 100, 0, 0. 10 हो गया यहाँ पे 31415 हो गया 12150. So the cost price for iron safe will be 1250. मंजिल के लिए कितना था? That is 1250. Now selling price of iron safe. Selling price of iron safe. That will be how much? कितना दिया हुआ है? 12875. Okay, so obviously the person is having gain because 12875 is greater value. So gain is equals to कितना जाएगा? 12875 minus 12500. So that will be equals to 375. So gain percent is equals to gain upon CP into 100. Okay, that is percent. So that is 375. First price will be your 12500 into 100%. 2020. ठीक है ना? So 125 3 is our answer will be your 3%. Is that clear? Understandable है सभी को? Okay. ये actually gain percent is equals to that is gain upon CP है क्योंकि हम उसी की कैलकुलेट कर रहे थे 200. गेन हमारा कितना है? हमारा फॉर्मूले से माइनस किया. ठीक है ना? SP minus CP that is 375. So 375 रखा. CP का वैल्यू कितना था? ये होगा 12500 into 100 upon percent. So mass percent का नीचे 100 आएगा. ये परसेंटेज हम क्यों लगाया? हमने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई किया इसीलिए परसेंटेज का सिंबल लगाया. क्योंकि हम क्या करें? हमने तो सिर्फ फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं. फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में. वरना हम लोग सिर्फ क्या कर देंगे कि व्हाट परसेंट व्हाट फ्रैक्शन वी आर हैविंग अ प्रॉफिट. हमने तो प्रॉफिट का फ्रैक्शन निकाला है ना एससीपी के साथ. अब उसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें परसेंटेज में. Okay, now the next question. Okay, I'm just waiting for you, Prachi. एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद चलेंगे.
तो रब कर दें, प्राची नोट कर ली क्या? अच्छा नोट कर लो, जिसको नोट कर लो नोट कर लो। Yes, Soumya. Some students are here. That's why I am talking to them now. If you want, you can also go. Yes, you can come, but you have to take the permission of your parents. Written permission होना चाहिए आपके पास. Application parents का sign करोगे. I have no problem with my what. ठीक है ना? वो important बेटा. Now see the question number 5. Robin purchased an old car of rupees 7350. He spent 10300 on repairs and paid to 600 for its insurance. Then he sold it to a mechanic 84,240. What will be his percentage gain and loss? Again, same. चलिए देखिए यहाँ पे. तो CP of car, that is equal to कितना हो जाएगा? He paid rupees 173,500. Along with he paid on repairing, that is 10,300. Plus he also paid 2,600 as insurance. So what will be his cost price? Now these two are the overhead expenses. ये क्या है आपके? These are the overhead expense. So what will be your, that is the actual cost price. Actual cost price will be your 00639 9 and 5, that is 44. One carry 4 4 then 4 4 2 6 6 हो गया. Then हो गया 7 1 8 86,000 this one. Now selling price of car, that is equals to how much? We told you that it is 84,240. Obviously the person is having loss. Yes. यहाँ पे देखिए selling price छोटा हो गया, इसका मतलब loss हुआ है. So we have to write here loss is equals to, ठीक है ना? यहाँ पे आप ले सकते हैं कि since SP is smaller than CP, therefore we are having loss, and loss is equals to how much? That is 86,400 minus 84,240. So 0 0 10 minus 4 6 3 minus 2 1. Okay. Then 6 minus 4, that is 2. 8 minus 8 0. So rupees 2160. That is your loss. ठीक है ना? इतना लॉस हुआ है, and loss percent is equals to loss upon CP into 100%. So that is equals to 2160 divided by your CP will be 86400 into 100. ठीक है ना? तो zeros are cancel out. तो divide करिए इसको. 2 point something something है. कितना आ रहा है? अच्छा 2.5 आएगा. वेरी गुड. तो इसमें आप 2 point something something जा रहा है. 2.5. Is that any problem to anyone? किसी को कोई चीज ना समझ में आई?
अविनाश लास्ट 2 लाइंस बेटा कुछ नहीं यहाँ पे लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी लॉस हमारा कितना है 2160 और क्या सीपी कितना है तो हमारा सीपी कितना है 8640 जो हमने रखा ये दो जीरोस हमने कैंसिल कर दिए अब 864 है 2160 है 8 2 जा 16 होता है 8 3 जा 24 तो ऑब्वियसली ये वैल्यू है वो कहां पर आएगी 2 पॉइंट समथिंग जाएगा तो आप इसको 2 टाइम्स करके डिवाइड कर दीजिएगा डिवाइड करिए हो जाएगा आंसर ये अविनाश चलिए ठीक है फिर आज के लिए यहीं पे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि फिर आप लोगों की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही होगी यू आर हैविंग टाइम ऑन है ना नेक्स्ट क्लास में की ना आप लोगों को ज्वाइन करना होगा फिर लेट हो जाता है आप लोग को है ना चलिए ठीक है यस सर